ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਗੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ 4 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 28 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਂਡਾ ਸਿਟੀ ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 7 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੀਰੂ ਨਾਮਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀਰੂ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਸਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ 10 ਗੁਰਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। 4 ਪਿਸਤੌਲਾਂ, 28 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 7 ਵਰਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕਾਰਪੀਓ ਤੇ ਹੋਂਡਾ ਸਿਟੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀਰੂ ਨਾਮਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਆਓ सुनते हैं। दी गई है लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ गैंग के 10 शार्प शूटर्स गुड़गांव पुलिस ने तत्परतापूर्वक इनको अरेस्ट करा गया है। हमारी कमिश्नर पुलिस मैडम कला रामचंद्र मैडम और डीसीपी सर विजय प्रताप सर के कुशल दिशा निर्देश द्वारा गुड़गांव पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 17 और सेक्टर 31 के इंचार्ज नरेंद्र चौहान और आनंद जी ने इनको समय रहते एक अच्छी तत्परता दिखाते हुए इनको 10 व्यक्तियों को अरेस्ट कराया जो कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के कुख्यात अपराधी पृष्ठभूमि से हैं और शार्प शूटर से। कहां से गिरफ्तार किया गया सर? क्या कुछ इनसे बरामद किया गया? 7 व्यक्तियों को जो सस्पेक्ट्स हैं इनको अरेस्ट करा है भोंसी के महेंद्रवाड़ा एरिया से, जिनके पास ये किसी योजनाबद्ध तरीके से वहां पर इकट्ठे हुए थे और पुलिस यूनिफॉर्म, आपको सबसे पहले ये बताने की जरूरत है कि पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर ये एक योजना बता रहे थे किसी डेकोविटी या किसी और भी अन्य मैटर को कमिट करने के लिए। कैसे गुड़गांव पुलिस को ये सूचना मिली थी और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? क्या कुछ इनके नाम हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? ये पिछले काफी समय से आप देख रहे हैं कि जितने गैंगवार की गतिविधियां पूरे देश विदेश के थ्रू ये यहाँ पर गतिविधियां हो रही हैं, दिल्ली एनसीआर के अंदर और हरियाणा पंजाब राजस्थान के एरिया के अंदर, तो देखने में आया कि इसको मद्देनजर रखते हुए हमारी कमिश्नर मैडम की तरफ से स्पेशल अभियान चलाए जा रहे हैं और डीसीपी क्राइम सर के थ्रू काफी एक्टिवली मॉनिटर करा जा रहा है इन अभियान को, जिसके तहत हम प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाते हुए ऐसी सूचनाएं हम कोशिश करते हैं कि हमें मिले जिस कारण ऐसी कोई भी एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटीज जो कंडक्ट करते हैं इस तरह के गैंगस्टर्स वगैरह, उसको विफल बनाया जा सके। क्या गोल्डी बराड़ के कहने पर ये यहाँ पर आई थी और क्या प्लानिंग थी इनकी? जी बिल्कुल, इस बारे में आपको सूचित किया जाता है कि भाई गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा जो कि ये मोस्ट वांटेड हैं, आप जानते हैं कि विदेशों में रह के यहाँ पर नेटवर्क लॉरेंस बिश्नोई का ऑपरेट कर रहे हैं। इन द्वारा इनको प्रॉपरली मॉनिटर करा जा रहा था, दिशा निर्देश दिए जा रहे थे और यहाँ पर गुड़गांव के अंदर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इनको यहाँ इकट्ठा करा गया था। सर, पुलिस की वर्दी बड़ी मात्रा में मिली है, किस तरह की वारदात को अंजाम दे सकते थे?
7 पुलिस यूनिफॉर्म्स मिली हैं। जो यूनिफॉर्म मिली नहीं है, यूनिफॉर्म के अंदर थे, ये यूनिफॉर्म पहन रखी थी एंड ये इस तरीके से किसी वारदात को तुरंत प्रभाव से अंजाम देने की फिराक में थे, जिस एवज में हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 और 31 ने वहां पर मौके पे ही इनको पकड़ा है। और नरेंद्र चौहान जो हमारे इंचार्ज हैं और आनंद हमारे इंचार्ज हैं, इन्होंने बड़ी बहादुरी का परिचय दिया इसके अंदर। सर कौन इस गैंग को लीड कर रहा था यहाँ गुड़गांव में? हाँ जी, 10 जो पकड़े हैं 10 आरोपी, इनमें से लीड कौन कर रहा था? देखिए 7 आरोपी अलग पकड़े गए हैं, जो कि मौके पे ही किसी योजनाबद्ध तरीके से पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर भौंसी एरिया के अंदर महेंद्रवाड़ा के एरिया में ये एक प्लानिंग के तहत इनको पकड़ा गया है। ये 7 आरोपी थे, जिनसे मौके से विदेशी वेपन्स 3 विदेशी पिस्टल जो है फॉरेन पिस्टल्स, फॉरेन मेड पिस्टल्स हैं और 22 कार्ट्रिजेस उनसे हम मौके पे बरामद करा है। और यूनिफॉर्म के अंदर, ये पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर किसी योजना को प्लानिंग करो। सर ये एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की थी और उसने कहा था कि कौशल के गैंग के जितने भी मेंबर हैं, शूटर्स हैं, वो उसके निशाने पर हैं। क्या ये जो यहाँ से लोग पकड़े गए हैं, बदमाश पकड़े गए हैं, ये उनके हत्या की फिराक में थे? सर देखिए, इस किसी भी संभावना से हम अभी इनकार नहीं कर सकते। ये सारा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, क्योंकि अभी पकड़ा ही है इनको, तो अब इनको पुलिस रिमांड पे लेंगे और प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करके इसको इसकी तह तक पहुंचेंगे। एग्जैक्टली क्या सिचुएशन थी या क्या इनको वारदात और भी करनी थी, किस तरीके से ये यहाँ पर इकट्ठे हुए, क्या क्या मॉडस ऑपरेंडी इनकी रही होगी। और ये जरूर है कि भी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड विदेश में बैठ के इनको संचालित कर रहे हैं, इनसे लगातार कन्वर्सेशन में थे, बात कर रहे थे, उसकी हम सारी बातों की परतें खोलेंगे। 10 लोग 3 आरोपी कहां से गिरफ्तार किए गए हैं? ये अलग अलग सूचनाएं आधार थी, बाद में कोरिलेट हुई हैं कि तीनों आरोपी जो हमें बाद में तो हमने 7 आरोपी जो हमने आपको बताया कि भी पुलिस स्टेशन भौंसी के एरिया के अंदर महेंद्रवाड़ा में पकड़े गए, जो कि किसी योजना को कंडक्ट करने की कोशिश थी। कैसे पहुंचे? ग्रुप्स में पहुंचे थे? ये अलग अलग ग्रुप्स में आपस में, कई लोग तो एक दूसरे को जानते नहीं है प्रॉपरली, इनको ऊपर से ही ऑपरेट करा जाता है। बाहर फॉरेन से ही अलग अलग डिफरेंट एप्लीकेशंस का यूज करके बात करते हैं और वहीं से फिर इनको ऑपरेट करता है। वेपन कहीं से सोर्स होता है, अलग अलग लड़के, जैसे कि बताया जा रहा है इसमें आपको कि भी राजस्थान के, पंजाब के और हरियाणा के लड़के यहाँ पर इकट्ठे करे गए हैं और ये आपस में एक दूसरे को इतना नहीं जानते हैं। और ये ऊपर से ही इनका सरगना जो गोल्डी बराड है वो दिशा निर्देश देता है और उसके तहत ये यहाँ पर इकट्ठे हुए। गाड़ी से यहाँ पहुंचे थे कि पुलिस की किसी तरह की गाड़ी को भी प्रयोग करने वाले थे? ये इनके पास 2 व्हीकल हमने इनसे बरामद करे हैं, एक स्कॉर्पियो है और एक होंडा सिटी है। ये 2 गाड़ियों के अंदर आए थे यहाँ पर, और जिसमें पता चला है कि जो होंडा सिटी कार है वो दिल्ली से चोरी भी है। अच्छा सर, ये वर्दी और हथियार कहां से लाके? इस चीज के लिए इन्वेस्टिगेशन अभी जो अब हम रिमांड पे लेंगे तो उनकी पूरी गहनता से पूछताछ। Subscribe to One India channel and never miss an update.